كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح البخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جو آپ نے ایک جنگ کے موقع پہ فرمایا تھا، وہ بھی اس وقت جب ایک آدمی جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا اس نے خودکشی کی، تو آپ نے صحابہ کو ایک واعظ کیا جو واعظ صحابہ کرام پھر ساری زندگی بھلا نہ سکے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو، ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ پاک اپنے دین کا کام فاجر بے دین آدمی سے لے سکتا ہے، لیکن لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف وہ جائے گا جو ایماندار ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہے. بس آگے والے مراحل اس کے لیے آسان ہیں. ایک آدمی کے بارے میں میں عرض کروں کہ فلاں بندے کے دل میں ایمان نہیں، وہ بے ایمان ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے. کسی کے بارے میں آپ تبصرہ کر دیں، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. لیکن اگر کسی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ بندہ ایماندار نہیں ہے، تو وہ ایماندار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے صرف فرمایا نہیں، اس فرمان سے پہلے آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی مجھے میرے رب کی قسم. یہ تو ہمارا ایمان ہے. ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پکی ہے، قسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا عام تھا کہ آپ نے پھر بھی قسم اٹھائی ہے. قسم اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے دوست احباب، ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے. یہ حدیث سنتے سناتے ہمیں زندگیاں گزر گئی ہیں. آج تک ہم نے اس حدیث پہ تبصرہ اوروں پہ کیا ہے، لیکن آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرا شمار کن میں ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے جو محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو. محبت کے دعووں میں ہم سب ہیرو ہیں، کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں. لیکن اصل محبت کہتے کس کو ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ الفاظ میں سمجھایا. اللہ کی قسم یہ دین ہمارا مشکل نہیں ہے. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، مجھ سے محبت وہ کرتا ہے جو میری اداؤں سے پیار کرتا ہے. یہ کتنی سادہ سی بات ہے. جس کو میری ادائیں اچھی لگتی ہیں، میری اداؤں سے جو پیار کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. سکول کے کسی اسٹوڈنٹ، کالج کے اسٹوڈنٹ، اس کو اپنے کسی کلاس فیلو سے دل لگی، پیار محبت ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بالوں کی کٹنگ ویسی کرواتا ہے جیسی اس کے دوست کی ہے. وہ اپنے لباس کے سلائی کا ڈیزائن ویسا بناتا ہے جیسا اس کے دوست کا ہوتا ہے.
اگر کسی کو کسی کرکٹر سے دل لگی ہو جائے تو اپنا ٹراؤزر ویسا پہنتا ہے جیسے اس کا ہوتا ہے، اپنے بالوں کی شکل ویسی بناتا ہے جیسے اس کے پیارے کی شکل ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں مجھ سے پیار وہ کرتا ہے جو میری اداؤں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی ایک ایک سنت سے پیار کرنے والا وہ ہے اصل پیار کرنے والا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی ہر ادا سے ہم پیار کریں، یہ کیسے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ انہونی بات نہیں ہے۔ ایک جماعت ایسی گزری ہے جو یہ محبت کر چکی ہے، اور اللہ پاک بھی مان چکا ہے کہ محبت ہو تو ایسی ہو۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی ادا کو بھولا نہیں کرتے تھے۔ میں تو حیران تھا، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام کا اچانک گھٹنا ایک دیوار کو لگ گیا، بس اس صحابی کی نگاہ پڑ گئی، اس نے اس جگہ کو یاد کر لیا، پھر وہ جب یہاں سے گزرا کرتے تھے تو اپنا گھٹنا لگا کے گزرا کرتے تھے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام سے اس انداز سے محبت کرتے تھے کہ آپ کی اداؤں سے پیار کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ایک چوک میں اپنی سواری گھما رہے ہیں۔ ایک دیہاتی نے پوچھا عبداللہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا تم بھی پوچھو۔ گئے، کہا عبداللہ خیر ہے، ایک ہی جگہ آپ سواری کو کیوں گھما رہے ہیں؟ اس کا تجھے فائدہ ہے، تیری سواری کو فائدہ ہے۔ کہا بھائی یہ فائدے ہم نہیں جانتے۔ کہا گھما کیوں رہے ہو؟ کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیر ناقتہ، ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کسی کے انتظار میں یہیں اپنی سواری گھما رہے تھے، میں تو آپ کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ آج بیٹھے بیٹھے حضور پاک کی یاد آئی ہے تو اچانک آپ کی یہ ادا یاد آ گئی ہے، میں تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ تو ایسی سنتے بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے تو اللہ پاک مانا ہے، اللہ پاک نے بھی کہ ایمان ہو، محبت ہو تو صحابہ جیسی ہو۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ایک جگہ اچانک قافلے والوں کو کہا ٹھہرو، قافلے کو روک دیا، پیچھے ہٹے، قضاء حاجت والی کیفیت بنائی اور واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا شیخ محترم آپ کو حاجت تو تھی نہیں، ضرورت تو تھی نہیں، آپ نے قافلے کو بھی روکا ہے اور کیفیت بھی بنائی ہے، کیا وجہ؟ کہا جب میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج عمرے کے لیے گیا تھا نا، اس درخت سے مجھے یاد آئے کہ میرے محبوب نے یہاں اپنی حاجت کو پورا کیا تھا، میں تو آپ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت ہے، یہ میں مثال صرف ایک صحابی کی عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے ایک دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیں۔ پھر آپ نے اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کیا نہیں کہ میری امت میں مشقت نہ پڑ جائے، لیکن صحابہ بیان کرتے ہیں یہ آپ کا فرمان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ کہتے ہیں مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر نے اس دروازے میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ کہ میرے محبوب کی چاہت ہے کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا حاذا عبداللہ، آقا یہ عبداللہ آپ کا غلام۔ کہا تمہاری ازار ٹخنوں سے نیچے، ارفع ازارک، تم عبداللہ ہو تو اپنا ازار اونچا کرو، اوپر اٹھاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ازار اوپر کیا، آپ نے فرمایا زد اور اوپر کرو، میں نے اور اوپر کیا، کہا اور اوپر کرو، حتیٰ کہ میری ازار
आधी पिंडली पे हो गई। आपने फरमाया इज़रतुल मुमिन अला निस्फ़ि साक़ी का। अब्दुल्ला, मजबूत ईमान की अलामत यह है कि इज़ार नीचे वाला तहबंद वो आधी पिंडली पे रहना चाहिए। फ़इन अबैता, अगर तू इसको महसूस करता है, पसंद नहीं करता, तो फ़इलल काबैन, तो अब्दुल्ला कम अज कम टखने तो नंगे रखा कर, टखने को तो तेरा कपड़ा ना लगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया। अब उनके शागिर्द बताते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर का इज़ार आधी पिंडली से कभी भी उसके बाद नीचे नहीं देखा गया। उनकी वफात हुई थी तो उस वक्त भी उनकी इज़ार आधी पिंडली पे थी। वो ये मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात को हुजूर पाक पे कुर्बान कर दिया था। ये है उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के पैगंबर से थी। हमारे तो कदम कदम पे रुकावटें आ गई हैं। बीवी नहीं मान रही थी, बच्चे नहीं मान रहे थी, मेरे मोहल्ले के दोस्त नहीं मान रहे, मेरे कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं मान रहे, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमें तो बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। अगर कोई इस तरह की मोहब्बत का नाम ले दे तो कहते मौलवी साहब सारा दीन इसमें आ गया। हमें तो बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं। ये बातें उनको नहीं आया करती थी, ये नारे उनको नहीं आया करते थे। वो अमली तौर पे हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाले थे। ये एक सहाबी की बात अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा कहा था, सहीह बुखारी में है, निअमर रजुलु अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी। एक इसमें खामी है, काश अपनी खामी को दूर कर ले। साहबा ने पूछा वो खामी क्या है? कहा लौ कान युसल्ली बिल्लैल, काश ये अब्दुल्ला तहज्जुद की नमाज के नागे छोड़ दे, हर रोज तहज्जुद की नमाज पढ़े। बस किसी ने यह बात सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर को बता दी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तेरे बारे में यह फरमा रहे थे कि बंदा बड़ा अच्छा है, काश तहज्जुद में नागा छोड़ दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सुना। उसके बाद फिर सारी जिंदगी कभी उन्होंने तहज्जुद की नमाज में नागा नहीं किया था। हमसे तो फजर की सुनते नहीं ना उठ के पड़ी जाती, जोर की सुनते हमारे लिए मौत है ना, मगरिब की सुनते हमारी टेंशन बन गई है ना। हम तो फर्जी नमाजों के चोर बन रहे हैं, लेकिन इनके घर वाले, इनका बेटा सालिम बताता है कान ला यनामु इल्ला कलीला, मेरे अब्दुल्ला को कई दफा सारी सारी रात नींद नहीं आया करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और मेरी तहज्जुद की नमाज रह जाए। मेरे महबूब की चाहत थी कि काश अब्दुल्ला तहज्जुद की नमाज का नागा छोड़ दे। वो हुजूर पाक से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे, ऐसा उन्होंने प्यार किया था, जो आपकी एक एक सुन्नत को अपनाने वाले थे। सोचा जा सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर उनको कोई हुक्म दे दे तो वो हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक अपने सहाबी को बोला था ना, मुहय्यिसा को, ऐ मुहय्यिसा जाओ, तेरे पड़ोस में मेरा एक गुस्ताख रहता है, जाओ उसकी गर्दन काटो। निकले, घर गए, तलवार उठाई, गुस्ताख रसूल की जाके गर्दन काट दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आपके गुलाम ने उस आपके गुस्ताख की गर्दन काट दी। घर आया, अपनी तलवार को साफ कर रहा है। बड़ा भाई हुवैसा, वो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था, उन्होंने पूछा ये खून किसका साफ कर रहे हो? कहा ये हमारे हमसाए का। हमसाए का? और तुमने उसको कत्ल कर दिए? कहा हां, मैं उसको कत्ल करके आया हूं। वो गुस्से में आ गया, उसने जोरदार थप्पड़ उसके सीने पे दे मारा। कहा जालिम, तुझे शर्म नहीं आई?
सब कुछ तूने भुला दिए। वल्लाहि लरुब्ब शाहमिन फी बतनिका मिन मालिही, तू जानता नहीं हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारा बाप दुनिया छोड़ गया था, आज तक ये हमें खिलाता रहे, ये हमें पिलाता रहे, ये हमारी परवरिश करता रहे, उसके एहसानों का हमने उसको ये बदला दिए। वो भी रो रहा है, वो कहता भैया इसके एहसान मुझे सारे याद थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं मजबूर हो गया था। कहा मेरी जिंदगी में तुझे मजबूरी क्या हो गई? कहा भैया मेरी मजबूरी ये थी, अमरनी रजुलन, मुझे उस मेरी जनाब ने, मुझे उस जात ने हुक्म दिया था, वल्लाहि लौ अमरनी बिकत्लिका लज़रबतु उनुका का, अल्लाह की कसम है अगर वो मेरा महबूब तेरे कत्ल का भी हुक्म दे देता तो मैं तेरी गर्दन भी काट देता। तू तो मेरे बाप की जगह है, तुझ में तो मेरे बाप की तस्वीर नजर आती है, तू तो मेरा खून है, लेकिन भैया तुझसे मोहब्बत कम है, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे महबूब पैगंबर से है, मैं अपने महबूब की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इस अंदाज से फर्मा बरदारी वाली मोहब्बत करते थे। हमारी सारी जिंदगी अपनी मर्जी की, कारोबार अपनी मर्जी का, सुबह अपनी मर्जी की, शाम अपनी मर्जी की, रात अपनी मर्जी की, फिर भी हम मोहब्बत के दावेदार हैं। बात फिक्र करते हैं मैं और आप दूसरों की, वो आपके एक एक हुक्म पे क्या क्या कुर्बानी दे दिया करते थे। सैयदना एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुनादी मदीना पाक में ऐलान कर रहे, क्या मुजाहिदो आ जाओ, दुश्मन ने अचानक हमला कर दिए, मैदान सज गए, नबी पाक अलैहिस्सलाम तुम्हें तलब कर रहे हैं, फौरन आओ। एक सहाबी है सैयदना हंजला, शादी की पहली रात है, क्या जज्बात होते हैं खामद और बीवी के, कानों में आवाज पड़ी, फौरन ही उठ खड़े, गुस्ल करने का इरादा किया। वो मोहब्बत वाला प्यार वाला दिल था ना, दिल से सदा आई, वो हंजला हुक्म मिला है फौरन पहुंचो, तुम गुस्ल के लिए जा रहे हो, गुस्ल करोगे तो देर हो जाएगी। पलटे, असलहा थामा, सीधे मैदान मक्तल में कूद गए, लड़ते लड़ते हुजूर का दिफा करते करते शहीद हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुश्मन भाग गया, आप शुहदा का मुआयना कर रहे, शुहदा का मुआयना करते करते जब हंजला की मैयत पाक आई, आप एकदम चेहरा छुपाते हुए पीछे हट गए। आपने कहा मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। हंजला के घर वाले किधर है? लाया गया। कहा मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? कहा आप जानते हैं आपके हंजला की शादी की पहली रात थी, गुस्ल फर्ज हो चुका था, देर से डरते हुए आपके हंजला ने गुस्ल भी नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू बरस रहे और आप फरमा रहे हैं बस यही बात है, मैं भी हैरान था, बाकी भी तो शुहदा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ मेरे हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। तो ये मोहब्बत किया करते थे, हुजूर पाक की फर्मा बरदारी ऐसे ही करते थे कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे की नमाज से फारग हुए, एक सहाबी घबराया हुआ आया, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, अब्दुल्ला बिन रवाहा वो मस्जिद की गली में बैठा है, वो अपने कदम नहीं हिला रहा, शिद्दत की गर्मी धूप में बैठा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम घबराए उठे, अब्दुल्ला को क्या हो गया? पहुंचे, गए, देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा पसीने में नहाए हुए। कहा अब्दुल्ला तुम इधर बैठे हो? कहा आज मुझे जुमे की नमाज के लिए आते आते देर हो गई थी, तुमने क्या फिर खुतबा इधर गुजार दिए? कहा देर से जब मैं आया, चलते चलते जब मैं इधर पहुंचा, मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी, बैठ जाओ। आका मैं इधर ही बैठ गया था, उसके बाद मैंने अपना एक कदम भी नहीं हिलाया। मेरे दिल ने सोचा अब्दुल्ला तुझे तेरे महबूब पैगंबर नहीं देख रहे,
लेकिन उनका आदर तो तेरे कानों में पड़ गया ना। अब देखना, एक कदम भी आगे बढ़ोगे कहीं वो कदम तेरा जहन्नम की आग की तरफ न चला जाए। वो सहाबा मोहब्बत करने, प्यार करने वाले थे। वो जानते थे ये मोहब्बत रसूल इबादत है, ये कोई मजाक नहीं है। ये दौलत जिसको मिल जाती है उसको बहुत बड़ी दौलत मिलती है, बहुत बड़ी दौलत। और ये कुल कायनात बड़ी दौलत उनके पास थी। वो जानते थे इस मोहब्बत में अपनी मर्जी नहीं करते, ये बाजारी मोहब्बत नहीं है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत मैंने पढ़ी है कि वो बाजार में क्यों बैठ गए थे। उनको तो पता था नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे तो नहीं फरमा रहे, आप तो उसको कह रहे हैं जो जिसको आप देख रहे हैं, जो मस्जिद के अंदर खड़ा हुआ है, लेकिन गली में क्यों बैठ गए। वो जानते थे जब आर्डर पड़ गए बस अब अपनी मर्जी खत्म। ये इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी करते ही नहीं। ईशा के 4 फर्ज थे ना, क्या ख्याल है अगर मैं 10 फर्ज पढ़ाऊं। मैं कहूं मेरा दिल कर रहा है, मोहब्बत बढ़ी हुई है, प्यार बढ़ा हुआ है, ईमान बढ़ा हुआ है, तो मैं 10 फर्ज पढ़ाना चाहता हूं। आप क्या कहोगे, मौलाना साहब ये मोहब्बत, ये जज्बात अपने पास रखो, ये नमाज इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी, अपने जज्बात नहीं चलते। मोहब्बत रसूल भी इबादत है, इसमें अपनी मर्जी नहीं करते। अब्दुल्ला बिन रवाहा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा जुमेरात की रात एक काफिले का अमीर बना के रवाना किया था कि अब्दुल्ला तुम इस काफिले के अमीर हो, रातों रात निकल जाओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सोचा कल जुमे का दिन है, मेरे महबूब खुतबा देंगे, मैं अमीर हूं, मेरे पास तेज सवारी है, घोड़ा है, इनके पास ऊंट है, क्यों ना हो कल हुजूर पाक के पीछे जुमे की नमाज पढ़ता हूं, आपका दीदार करूंगा, आपका खुतबा सुनूंगा, आपसे दुआएं लूंगा। काफिले को तो मैं रवाना कर देता हूं, लेकिन मैं बाद में जुमे के बाद पहुंच जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन रवाहा ना गए, काफिले को रवाना कर दिया। क्यों नहीं गए? मोहब्बत रसूल में नहीं गए, आपके प्यार में नहीं गए। लेकिन यह मोहब्बत अपनी मर्जी की मोहब्बत नहीं है, यह बाजारी मोहब्बत नहीं। मैं तो यह मिसाल अक्सर दिया करता हूं कि अगर इधर नौजवान आके खड़ा हो जाए, मुझे और आपको कहे कि तुम में से नबी पाक अलैहिस्सलाम से कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी मोहब्बत नहीं करता, आज के रसूल मोहब्बत करने वाला मैं हूं, मैं भी उससे पूछूं, आप भी पूछें, भाई तुमने हमें फारग कर दिए, क्या वजह? वो अपने सीने से बटन खोल के मुझे और आपको दिखाए कि मैंने हुजूर पाक का नाम अपने सीने पे लिखा है, तुम में से किसी ने लिखा है? हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे भाई ये बाजारी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत वो नहीं जो आप समझे, ये मोहब्बत इबादत है और इबादत में अपनी मर्जी नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम जुमे के खुतबे के लिए चढ़े मिंबर पे, सामने देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा बैठे, कहा अब्दुल्ला मैंने तो आपको रात को रवाना कर दिया था, तुम अभी इधर हो। काका काफिले को मैंने रवाना कर दिया है, मैं भी चला जाऊंगा, मेरे पास चूंकि तेज सवारी है। आका हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी जुमा हो, मैंने कहा आपका खुतबा सुनता हूं, आपके पीछे नमाज पढ़ता हूं, आपसे दुआएं लूंगा। आका घोड़े को एड़ी लगाऊंगा, वो तो पहुंच जाएगा। आपने इस अपनी मर्जी की मोहब्बत को शाबाश नहीं दी, आपने कहा अब्दुल्ला तुमने बहुत बड़ी गलती की है, लौ अनफक़ता मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अगर तुझे जमीन के सारे खजाने दे दिए जाएं और अपनी मर्जी की मोहब्बत पे सारे खजाने तू खर्च कर दे, फिर भी तू उन लोगों के सवाब को नहीं पहुंच सकता जो रातों रात मेरा हुक्म मान के चले गए, जिन्होंने अपनी मर्जी नहीं की, जिन्होंने अपने जज्बात की मोहब्बत नहीं की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा की ये तरबियत की थी, वो फर्मा बरदारी वाली, कुर्बानियों वाली मोहब्बत किया करते थे। उन्होंने इस मोहब्बत पे अपने मालों को कुर्बान किया, मालों को।
हमसे तो सिर्फ आमाल नहीं ना होते, उन्होंने माल कुर्बान की। अल्लाह की कसम, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफा ही बोला था ना कि ये दरख्त मुझे चाहिए, कौन खरीदेगा? सैयदना अबू दहदा, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया, भागे हुए उस दरख्त के मालिक के पास पहुंचे, ये दरख्त मुझे चाहिए, ये दरख्त, ये तो मैंने नहीं बेचना। कहा बेच दो, जितने मर्जी सोना ले लो। कहा नहीं। कहा मेरे कीमती बाग को जानते हो? कहा आपके बाग को कौन नहीं जानता, जिसमें 600 खजूरों के दरख्त हैं। खा जाओ, मेरे पूरे बाग में से जो पसंद करो, तुझे 10 दरख्त देता हूं, ये एक दरख्त मुझे दे दो। कहा नहीं। कहा मैं तुझे 100 दरख्त देता हूं। कहा नहीं। कहा इस दरख्त की जरूरत मेरे महबूब पैगंबर को पड़ी है, ये तो मैंने खरीदना ही खरीदना है। तुम मुझसे आधा बाग ले लो, आधा बाग, मुझे एक दरख्त दो, मैं तुझे 300 खजूरों के दरख्त देता हूं, आधा बाग। ये वाकयात पढ़ते हुए अल्लाह की कसम मुझे इन आयात की समझ आती है कि सहाबा इकराम के दुश्मन, आपके दुश्मन यहूदी, ईसाई, मुशरिकीन मक्का, वो क्यों कहा करते थे अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाएं, उस तरह मोहब्बत करें जिस तरह ये बेवकूफ मोहब्बत करते। उन्होंने हुजूर पाक से मोहब्बत ऐसी की थी, लोग उनको पागल कहते थे, पागल। उन्होंने प्यार ऐसा किया था। उसने सोचा जो आधा बाग देने के लिए तैयार है, ये सारा ही देगा। कहा नहीं। कहा तेरी ये मंशा है, मुझे सारा बाग मिल जाए। एक बाग क्या है, 1000 बाग हो, मोहम्मद ज़ीशान अलैहिस्सलाम पे कुर्बान है, ले जाओ, मुझे एक दरख्त दे दो, इस दरख्त की जरूरत मेरे महबूब को पड़ी। काबू दादा क्या कह रहे हो, होश में तो? कहा हां होश में हूं, ये दरख्त मुझे दो, सारा बाग ले लो, तेरा है बाग। कहा ठीक है। भागे हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा का मुबारक हो, आपके गुलाम ने वो आपका दरख्त खरीद लिया है। आका वो दरख्त आपका है। कहा कितने का खरीदे? कहा उसकी कीमत तो महंगा मिला है। कहा मैंने 600 दरख्तों वाला पूरा बाग ही दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान की तरफ निगाह उठा रहे और आप बार बार फरमा रहे कम मिन इश्किन मुअल्लक़िन लि अबी दहदा। मेरे साथियों, मेरे अल्लाह ने हिजाबात उठाए, मैंने अभी अभी देखा है जन्नत के अंदर एक दरख्त है, जिस दरख्त के हर खोशे पे अल्लाह ने अबू दहदा का नाम लिखवा दिया है। उन्होंने हुजूर पाक की मोहब्बत पे कुर्बानियां दी हैं। मजलिस में बैठे हुए याद आया, मैंने अपना सर छुपाने के लिए जो झोंपड़ी बनाई है वो भी तो उसी बाग में है। जल्दी से उठे, भागे हुए बाग के किनारे पे खड़े हो गए, आवाज देते या उम्मा दहदा, ओ दहदा की मां आ जाओ, उखरुजी, बच्चों को लेके बाहर आ जाओ, ये बाग हमारा नहीं, ये बाग हमने बेच दिए। दहदा की मां ने आवाज सुनी, कहा अबू दहदा कितने का बेचा है? कौन बड़ा ताजर आ गया जिसने इतना बड़ा बाग आपसे खरीद लिए? कहा कोई आम ताजर नहीं, मैंने अपने महबूब पैगंबर को बेच दिए है। कहा कितने का बेचा है? कहा बिशजरतिन मिनल जन्नह, जन्नत के एक दरख्त के बदले। वो पलटी वहां से, वो भी तो हुजूर पाक से मोहब्बत और प्यार करने वाली थी, पलटी वहां से, अपने बच्चों को उठाती है, बच्चों के हाथों में खजूरें हैं, उसने खजूरें छीन के फेंक दी। कहा बेटा ये बाग और इसका फल हमारा नहीं है। हयात सहाबा में अल्लाह की कसम मैंने खुद पढ़े, उस मां की मोहब्बत को भी मैं सलाम पेश करता हूं। बेटे को कौन समझाता, बच्चे ने एक खजूर जल्दी में अपने मुंह में डाल ली। उस मां ने अपनी उंगली से अपने बेटे की जुबान से खजूर छीन ली। कहा नहीं बेटा, जन्नत के बदले अल्लाह के पैगंबर को हमने ये बाग और इसका फल दे दिए, कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए। बच्चों को खाली हाथ लेकर बाहर आ रही है और अपने सर के ताज अबू दहदा को क्या कहती है, वाह अबा दहदा,
अबू दहदा लक़द रबिहल बैउ, अबू दहदा गम न करना, अबू दहदा परेशान न होना, तुमने नुकसान वाली तजारत नहीं की। अबू दहदा ये बाग तो खत्म हो ही जाना था, अबू दहदा ये बाग न खत्म होता, हमने मर जाना था। वो अबू दहदा जो बाग तुमने खरीदा है ना अल्लाह के पैगंबर से, एक दरख्त नहीं, अपनी अपने बच्चों की तुमने सारी जन्नती खरीद ली है। उन औरतों की भी क्या मोहब्बत हुआ करती, उन्होंने अपने मालों की कुर्बानियां दी हैं। ये एक एक मिसाल में अर्ज कर रहा हूं, इस तरह की मिसालें भरी पड़ी हैं। वो एक इशारे पे जो इनसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे, सारा सारा घर का माल लेकर आ जाया करते थे। उन्होंने माल को कोई हैसियत नहीं दी, उन्होंने मोहब्बत रसूल में वो अपने कारोबार और मालों से भी आगे थे। उनको माल से प्यार था लेकिन अल्लाह के पैगंबर से कम था। उनको अपनी औलादों से प्यार था लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ज्यादा थी। जिसके पास 4 बेटे इसीलिए उन्होंने 4 कुर्बान किए, जिसके बाद 2 हैं 2 ही उतार दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का आज मदीना पाक में पहला दिन है। पहला दिन मदीना की एक मां अपने अकलौते बेटे को लेके आई, 8-10 साल की उसकी उम्र है। अर्ज करती अल्लाह के हबीब ये मेरा एक ही बेटा है। हाँ कहा आज के बाद मैं अपने इस बेटे से कोई काम नहीं लूंगी, इसको मैं कोई सवाल नहीं डालूंगी। अल्लाह के हबीब ये मेरा बेटा है लेकिन आज के बाद आपकी खिदमत के लिए वक़्फ़ है, अब ये आपकी खिदमत करेगा। एक और मां की मैंने दास्तान पढ़ी तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद में। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिहाद के लिए जा रहे, काफिला तैयार हो रहा है। एक औरत घर में रोने लगी। औरतें कहती तुझे क्या हो गया? कहा तुमने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पे कुर्बान करने के लिए अपने जवान बेटों को रवाना कर दिए, मेरे पास तो जवान बेटा है ही नहीं, मैं क्या कुर्बान करूं? सब्र न कर सकी, रोटी घर से निकली, जिहाद का काफिला रवाना हो चुका है, पीछे भागती आ रही है, आवाजें देती आ रही हो काफिले वालों मेरी बात सुन के जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला दी गई, आप पीछे पलट के आए, देखा अल्लाह की बंदी भागी आ रही है। करीब आके पूछा अल्लाह की बंदी क्या बात है? खाका आप जिहाद के लिए जा रहे? कहा हाँ। उसने सुनते ही अपना दूध पीता बेटा महबूब पैगंबर के हाथों में डाल दिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हैरानो शस्तर, अल्लाह की बंदी तेरे इस बच्चे का हम क्या करेंगे, ये तो उल्टा हम पे बोझ है। वो रो पड़ी, आका ये तो मैं भी जानती हूं मेरा बेटा तलवार उठाने के काबिल नहीं है, ये आपका दिफा नहीं कर सकता, लेकिन आका मेरी कुल कायनात यही है, अगर मेरे पास भी जवान बेटा होता तो क्यों कर आप पे कुर्बान न करती। आका मेरा एक ही बेटा है, मेरे दिल की मंशा ये है आप इसको ले जाए, जब दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए ना तो आप मेरे बेटे को उठा के आगे कर देना, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। आका वो तीर मेरे बेटा रोक दे, मेरे बेटे को लग जाए, मेरा बेटा आपके दिफा में कुर्बान हो जाए, ये तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन अल्लाह न करे अगर वो तीर आपको लग गया, आपको लगा हुआ तीर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुर्बान न जाऊं आप पे। उन्होंने ये मोहब्बत की है, इस मोहब्बत के मैदान में उतरो, कुर्बानियों वाली मोहब्बत चाहिए अल्लाह पाक को। हम तो आज तक इस मोहब्बत में बरसों से अपने आप को पक्का नमाजी ना बना सके। हमने सुन्नतों से प्यार क्या करना है, फर्जी नमाज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हुक्म देते रहे, जाते हुए भी अली पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो आखिरी कलाम मैंने सुना है ना, आप यही कहते हुए जा रहे थे मैं जा रहा हूं नमाजों का ख्याल रखना, नमाजों का गुलामों का, नमाजों का गुलामों का, नमाजों का ख्याल रखना। हमारी क्या मोहब्बत है, लेकिन असल मोहब्बत करने वाले वो थे
जिन्होंने माल कुर्बान किया, औलादें कुर्बान की। माल औलाद क्या है, उन्होंने तो हुजूर पाक की मोहब्बत से अपनी जान को भी बचाया नहीं। इस रास्ते पे उनको जान लुटानी पड़ी, उन्होंने जानों के नजराने पेश कर दी। उनको ये मोहब्बत थी, वो जानते थे कि ये मोहब्बत सबसे आला है। जिसको ये मोहब्बत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया, जिसको ये ना मिली उसको कुछ भी नहीं मिला। उनकी तरबियत की थी कि अपनी जानों से ज्यादा प्यार करो अपने पैगंबर से। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एक दफा हाथों में हाथ डाल के जा रहे थे ना, मोहब्बत का इजहार करते, आका मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, बड़ा प्यार जाता हूं, आपकी मजलिस से जाता हूं तो फिर आपकी दोबारा मजलिस का मुझे इंतजार रहता है कि मेरी अब दोबारा आपसे मुलाकात कब होगी। और ये इंतजार औलाद से भी खत्म नहीं होता। मैं अपने दोस्त अहबाब से भी मिलूं तो फिर भी ये मोहब्बत की प्यास मेरी बुझती नहीं जब तक आपकी मजलिस में ना आ जाऊं। का बहुत प्यार करता हूं, इल्ला नफ्सी, अपनी जान हर एक को प्यारी है। जान तो मुझे बड़ी प्यारी है, जान से ज्यादा नहीं, बाकी कुल कायनात से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने क्या फरमाया, ला या उमर, ऐ उमर नहीं, ऐ उमर नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, उस वक्त तक तुम में से कोई ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे प्यार ना कर ले। उन्होंने इसलिए हुजूर पाक की जानों के नजराने पेश किए। उन्होंने जानों की क्या कुर्बानी है, क्या नजराने पेश किए, वो तो एक लंबी फरिश्त और लंबी दास्तान है। उसमें से उन कुर्बानियों की एक मिसाल जरूर अर्ज करता हूं। सैयदना अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी वजह से बदर की लड़ाई में शरीक ना हो सके। बदर का मैदान, पहली जंग, कुफार और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथियों की पहली जंग। सफर पे गए हुए तो वापस आया, पता चला मक्का से लोग आए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए। अनस अपने आप से कुड़ने लगे। वो अनस, मुश्किल वक्त के अंदर ही तो मोहब्बत का पता चलता है। तेरे पैगंबर से लड़ने के लिए आए और तुम थे ही नहीं। तेरे महबूब को अगर वो नुकसान पहुंचा देते तो तुम अल्लाह के पास कौन सा चेहरा लेकर जाते। सहाबा बयान करते हैं, मजलिस में बैठे बैठे अल्लाह से बातें करना शुरू हो जाते थे। कहा करते थे, लइन अशहदनी अल्लाहु किताल अल मुशरिकीन, ऐ मेरे अल्लाह पिछली गलती की मुझे मुआफी दे दे। अल्लाह मैं पहली जंग में शरीक ना हो सका, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह एक मैदान और लगा दे, एक मैदान लगा दे। लयरयन्नल्लाहु कैफ उकातिलु, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझे फिर दिखाऊंगा मैं तेरे महबूब पैगंबर पे कैसे कुर्बान होता हूं, ये फैसला उस दिन करूंगा। अल्लाह तू एक मैदान लगा दे, एक दफा फिर मेरे महबूब के दुश्मनों को मैदान में ले आ। बस अल्लाह से दुआएं करते रोते रहते दिन रात, हत्ता कि वो मौका आ गया। मक्का वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए, बदर का बदला लेने के लिए दोबारा फिर आ गए। ओहद का मैदान सजा हुआ है, सैयदना अनस ने तलवार उठाई हुई है, ओहद के मैदान की तरफ जा रहे। सामने से साद बिन मुआज मिले। कहा किधर जा रहे हो इतनी तेजी से? कहा तुम किधर? इन्नी लाजिदु रिहल जन्नत दून ओहद, ऐ साद मुझे तो ओहद के मैदान से जन्नत की खुशबू आ रही है। आगे गए, मैदान सजा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने दीवार बन के खड़े। जो तीर आपकी तरफ आते उसको अपने सीने से रोक रहे, कभी अपने दाएं से, कभी हुजूर पाक के बाएं से दिफा कर रहे, कभी दाएं से, कभी आगे से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो भी तीर आता है उसको रोकने की कोशिश कर रहे, हत्ता की कोशिश करते रहे, इतने तीर लगे कि गश खा के जमीन पे जा गिरे, बेहोश हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में उधर ही मैदान में सैयदना अनस की रूह परवाज कर गई। अब अल्लाह पाक ने मदद की, शिकस्त को अल्लाह पाक ने फतह में तब्दील किया, दुश्मन मैदान छोड़ के भाग गया। अब शुहदा का मायना किया जा रहा है, लेकिन ये अनस
نہ زندوں میں مل رہے ہیں نہ شہداء میں مل رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ بیوی بچے آئے، انس کو ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن نہیں مل رہے۔ کانوں کان بہن کو خبر ملی، وہ روتی ہوئی بھاگی ہوئی آئی، عرض کرتی آقا میں انس کی بہن ہوں، انس میرا بھیا ہے، میں نے بچپن سے لے کے آج تک اپنے بھیا کو دیکھا ہے، آقا جتنا میں اپنے بھیا کو پہچان سکتی ہوں اتنا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ بہنوں کا پیار تو پھر آپ جانتے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی، کہا ہاں میرے انس کو تلاش کرو۔ انس کو شہداء میں تلاش کیا جا رہا ہے، ایک ایک شہید کا معائنہ کرتے کرتے ایک انگلی پہ نگاہ ٹھہر گئی، اس انگلی کو پکڑا، یہ انگلی کس کی ہے؟ جن کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے، جن کا ناک بھی کٹا ہوا ہے، جن کے کان کٹے ہوئے، جن کا سر پھٹا ہوا، سینہ چاک کیا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئی۔ انس کی بہن نے اس انگلی کے قریب ہو کے دیکھا، روتے ہوئے کہتی اللہ کے حبیب میرے بھیا کی اور کوئی علامت بھی صحیح سلامت نہیں ہے، لیکن آقا یہ انگلی میرے بھیا کی ہے، اس انگلی کو میں نے پہچان لی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پاس کھڑے حیران ہو رہے ہیں کہ انس کے جسم پہ اب زخم لگنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے انس کے جسم پہ زخم شمار کیے تو وہ 80 سے زیادہ تھے، 80 سے زائد زخم ہم گن سکے۔ نبی پاک علیہ السلام پاس کھڑے رو رہے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تار ہو رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں او میرے ساتھیوں میرے انس کی شان میں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دی ہے۔ آج میرے انس کی شان میں قرآن بولے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، بڑے بڑے ایماندار تھے جو اللہ سے وعدے کیا کرتے تھے، اللہ سے بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے سچے کر دیے۔ میرے محترم بھائیوں، اصل محبت یہ ہے، عبادات قربانیوں کا نام ہے، عملی زندگی میں اپنے آپ کو اتاریں، قربانیوں کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھیں، یہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ ہندوؤں والی باتیں، مشرکین مکہ والی باتیں ہیں، جی بندے کے بیٹے ہوں تو بندے کا نام زندہ رہتا ہے، مالدار ہو، کاروباری ہو، بڑا بزنس ہو، پھر ہی بندے کا نام زندہ رہتا ہے، نہیں، مسلمان کی یہ سوچ نہیں، ہمارے نام زندہ محبت رسول سے رہتے، کاروباروں اور بیٹوں سے نہیں، محبت رسول سے نام زندہ رہتے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے مال و دولت والے سردار، ابو جال جیسے اللہ کی قسم ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن لوگ آج ان کا نام گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں میرے بلال کو دیکھ لو، میرے بلال کے پاس کوئی بڑا بزنس نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، میرے بلال کے پاس بیٹے نہیں تھے، لیکن دل محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آج بھی بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے بیٹوں کا نام پیار سے بلال رکھتے ہیں۔ میرے بلال کا نام کیوں زندہ ہے؟ محبت رسول کی وجہ سے، پیار بڑا تھا، آسمانوں میں جنت میں ان کے چرچے محبت رسول کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا میرا بلال کدھر ہے؟ صحابہ حیران ہے، آج بلال کے بڑے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کہا رات کو میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں نے جب جنت میں گیا، میں جنت میں جہاں گھومتا تھا، انی سمیت دفن علیک فی الجنہ، او بلال میں جدھر جاتا تھا تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے تو مسجد میں آ رہا تھا، لیکن میں تیری آواز اپنے کانوں سے جنت میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا، تو میرے آگے آگے جیسے جنت میں چل رہا ہے، آواز ایسے آ رہی تھی۔ محبت کرنے والوں نے پھر اس کی تفسیر کی ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ لوگوں، میرے محبوب پیغمبر جس سواری پہ سوار ہو کے جنت کی طرف جائیں گے، اس سواری کی مہار کسی فرشتے نے نہیں تھامی ہوگی، بلکہ آپ کی سواری کی غلام، آپ کے غلام بلال نے تھامی ہوگی۔ بلال میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ آگے آگے جنت میں جائے گا۔
ये उनको मुकाम कैसे मिला है? उनको मुकाम ये मिला है मोहब्बत रसूल की वजह से। मोहब्बत रसूल से नाम जिंदा होता है। इसी वजह से वो दौलत से ज्यादा प्यार करते थे, आपके इशारे पे दौलत कुर्बान करते थे। जानते थे दौलतों से नाम जिंदा नहीं रहते। वो अपने बेटों को हुजूर की मोहब्बत पे इसलिए कुर्बान किया करते थे, जानते थे बेटे ना भी रहे नाम जिंदा रह सकता है, क्योंकि बेटों से नाम जिंदा नहीं रहता, नाम जिंदा मोहब्बत रसूल से रहता है। आओ इस मोहब्बत से पीछे ना रहो, इस मोहब्बत में आगे बढ़ो। अपने आप को लोग जैसी मर्जी बातें करें, आपके कॉलेज वाले जैसी मर्जी बातें करें, मोहल्लेदार जैसे मर्जी ताने दे, लेकिन आपके दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए। इसी मोहब्बत में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबियां रिश्ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपने महबूब अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आपके गुलामों में, सच्चे गुलामों में शामिल फरमाए। सहाबा इकराम की तरह आपसे मोहब्बत का हमें सही इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें क़यामत के दिन भी अपने महबूब पैगंबर का साथ नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।